بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ڈیسیکیشن ہے۔ ڈیسیکیشن کا مطلب ہے خشک کرنا یا ڈرائی کرنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں ڈیسیکیشن میں کیا ہے۔ اٹ از دا ڈرائنگ پروسیس، یہ خشک کرنے کا ایک عمل یا پروسیس ہے وچ از وائڈلی یوزڈ ان فارمیسی، جو کہ بہت وسیع پیمانے پر، وائڈلی کا مطلب بہت زیادہ وسیع پیمانے پر، یوزڈ ان فارمیسی، فارمیسی میں استعمال ہوتا ہے، ٹو ریموو دا ایڈمکسڈ واٹر فرام دا پروڈکٹ، کسی پروڈکٹ یا دوائی میں سے ایڈمکسڈ واٹر مطلب جو اس میں پہلے سے حل شدہ پانی ہے اس کو ہٹانے کے لیے، یا کسی ڈرگ میں یا کسی پروڈکٹ میں جو حل شدہ پانی ہے اس کو ہٹانے کے لیے، یا اس ڈرگ کو خشک کرنے کے لیے جو پروسیس استعمال ہوتا ہے فارمیسی میں، اس کو ہم ڈیسیکیشن پروسیس کہتے ہیں۔ The term desiccated is applied to those substances or products that have undergone the desiccation process۔ تو desiccated کا جو لفظ ہے یہ ان سبسٹانسز یا ان دوائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ ڈیسیکیشن کے عمل کے ذریعے خشک کی گئی ہوں۔ تو جو خشک شدہ دوائیاں ہوں گی جن کو ہم ڈیسیکیشن کے پروسیس سے خشک کریں گے، ان کو ڈیسیکیٹڈ پروڈکٹ یا ڈیسیکیٹڈ سبسٹانسز کہیں گے۔ اب نیکسٹ جو سلائیڈ ہے ہماری، اس میں کیا ہے، دا ایڈمکسڈ واٹر از کمپلیٹلی ریمووڈ فرام دا سبسٹانس اور پروڈکٹ۔ جو ایڈمکس واٹر ہوگا یا پہلے سے جو حل شدہ پانی ہوگا اس کو ہم مکمل طور پہ ریموو کریں گے، ہٹا لیں گے یا نکال لیں گے اس سبسٹانس یا دوائی میں سے جس کو ہم نے خشک کرنا ہوگا۔ These are also termed as dried product۔ تو پھر ہم ان کو، جس دوائیوں کو یا ان سبسٹانسز میں سے جن میں سے ہم پانی نکال لیں گے، پھر ہم ان کو نام دیں گے ڈرائیڈ پروڈکٹ کا، کیونکہ اب اس میں مزید کوئی موئسچر وغیرہ یا پانی وغیرہ نہیں ہوگا، تو اس کو ہم ڈرائیڈ پروڈکٹ کا نام دیں گے۔ اب ہے میکانزم کہ یہ کس طرح عمل کیا جاتا ہے، یا اس کا طریقہ واردات، یا اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو میکانزم میں ہے ان ڈیسیکیشن میں دا ڈیسیکینٹ۔ تو ڈیسیکینٹ کیا ہوگا، وہ مٹیریل ہوگا جو ڈیسیکیشن میں استعمال ہوگا ٹو ریموو دا واٹر اور موئسچر، پانی یا موئسچر کو ریموو کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہوگی اس کو ہم ڈیسیکینٹ کہیں گے۔ تو ان ڈیسیکیشن میں the desiccant is used to remove the extra or admixed water from the substance or product۔ تو ڈیسیکیشن میں جو ڈیسیکینٹ یوز ہوگا یا استعمال ہوگا پانی یا موئسچر ریموو کرنے کے لیے فرام سبسٹانس میں سے اور پروڈکٹ یا کسی دوائی میں سے، اس کو ہم سلیکا جیل بھی کہیں گے، کیونکہ سلیکا جیل استعمال ہوتا ہے ایز اے ڈیسیکینٹ کے طور پہ، کہ وہ پانی کو ریموو کرتا ہے یا اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ڈرگ جو ہے وہ خشک رہتی ہے۔ تو سلیکا جیل کے علاوہ بھی کچھ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہاں جو اگزامپل دی گئی ہے ڈیسیکینٹ کی وہ سلیکا جیل ہی ہے۔ تو سلیکا جیل ہے جو استعمال ہوتی ہے ریموو دا ایکسٹرا، تو اس کو ریموو کرنے کے لیے جو ایکسٹرا یا ایڈمکسڈ واٹر ہے جو پہلے سے مکس ہے اس کو ایڈمکسڈ واٹر کہیں گے، یا ضرورت سے زیادہ جو موئسچر ہوگا اس کو ریموو کرنے کے لیے ڈیسیکینٹ کے طور پہ سلیکا جیل استعمال کرتے ہیں۔ is usually used for those products that do not have the noticeable quantity of moisture۔ تو اس میں پھر کیا ہوگا، the desiccant یوز ہوگا، ریموو کرے گا وہ پانی کو، اور پھر جو دوائی ہے اس کے لیے پھر ہم یوز کریں گے ٹرم ڈرائی۔ ڈرائی کیوں استعمال کریں گے، کیونکہ اب ہم نے اس میں سے پانی یا ایکسٹرا موئسچر جو ہوگا وہ ریموو کر لیا ہوگا، اب اس میں مزید موئسچر یا لیکوڈ نہیں ہوگا، اس لیے ہم اس کو ڈرائی کا نام دیں گے۔ تو ڈرائی عام طور پہ یوز ہوگا ٹرم یا لفظ یوزڈ فار
दोज प्रोडक्ट उन प्रोडक्ट या उन मेडिसन के लिए दैट डू नॉट हैव नोटिसेबल क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर, तो जिनमें काबिल ज़िक्र मिकदार ना हो मौजूद किसकी, मॉइस्चर की। ठीक है जी, तो उस हम प्रोडक्ट को जिसमें काबिल ज़िक्र या का नोटिसेबल क्वांटिटी मॉइस्चर या नमी या माया की ना हो, उसको हम ड्राई प्रोडक्ट का नाम दे देंगे। अब डेसिकेंट क्या है? डेसिकेंट है द केमिकल यूज्ड फॉर डेसिकेशन आर कॉल्ड डेसिकेंट। ऐसा केमिकल जो डेसिकेशन के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम डेसिकेंट कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इनको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी या पानी को कम करना। क्योंकि ये पानी को निकालते हैं दवाई में से या कम करते हैं, तो इसलिए इनको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं। दे इंक्लूड, इनमें शामिल हैं कौन से प्रोडक्ट हैं? पहला जो है P2O5 है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड है। दूसरा इसमें सिलिका जेल है। तीसरा एक्सीकेटेड कैल्शियम क्लोराइड है। चौथा कंसनट्रेटेड H2SO4 है। और पांचवा इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये वो 5 केमिकल हैं जो आमतौर पे डेसिकेशन के अमल में हम इस्तेमाल करते हैं और इनको हम डेसिकेंट कहते हैं। अब है इस प्रोसेस की एप्लीकेशंस, या ये प्रोसेस कहाँ कहाँ अप्लाई होता है या एप्लीकेबल है। तो इसका पहली जो इसकी एप्लीकेशन है, एड इन प्रिजर्वेशन, सॉरी एड नहीं, एड इन प्रिजर्वेशन, कि ये हेल्प करता है प्रिजर्वेशन के लिए या किसी चीज़ को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए। इसको एड कहते हैं। एड मतलब इमदाद करना या हेल्प करना। तो वेजिटेबल्स एंड एनिमल ड्रग सून अंडरगो डीकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो मुख्तलिफ सब्जियां और वो दवाइयाँ जो हम जानदारों से हासिल करते हैं वो बहुत जल्द ही डिकम्पोज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, गल सड़ जाती हैं। किसकी वजह से? बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि उनमें नमी या मॉइस्चर होता है। तो उसमें क्या होगा, जिस चीज़ में नमी होगी या मॉइस्चर होगा उसमें बैक्टीरिया या फंजाई को ग्रो करने का चांसेस मिलेंगे। तो पानी या नमी के बगैर कोई भी जानदार क्योंकि ग्रो नहीं कर सकता, तो इसलिए जिस सब्जी या जिस खुराक में नमी या पानी का तनासुब ज़्यादा होगा उसमें खुर्दबीनी जानदार जाएंगे और ग्रो करेंगे। जब वो ग्रो करेंगे उस खुराक में तो उसको डिकम्पोज या ख़राब कर देंगे। फिर क्या होगा, डेसिकेशन प्रोसेस रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम ड्रग। तो फिर इस तरह जब हम उन प्रोडक्ट में जिनमें नमी होगी और हमें ख़तरा होगा कि इसमें खुर्दबीनी जानदार बैक्टीरिया या फंजाई जाएंगे और इसको ख़राब करेंगे, तो हम उसमें डेसिकेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द ड्रग, तो हम उस दवाइयों में से मॉइस्चर या नमी को रिमूव करेंगे या ख़त्म कर देंगे। तो फिर क्या होगा, इट प्रिजर्व देम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो उससे ये होगा कि ये इनको लंबे अरसे तक के लिए महफूज बना लेगा। प्रिजर्व का मतलब है लंबे टाइम के लिए महफूज कर लेना। तो फिर इस तरह हम उन दवाइयों को जो वेज प्लांट से हासिल की गई हैं या एनिमल सोर्स से हासिल की गई होंगी, उनको लंबे अरसे तक हम काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं या महफूज बना सकते हैं कि उनमें कोई भी जर्म या माइक्रोब ग्रो ना करे और ना ही उनको ख़राब करे। अब है जी रिड्यूस बल्क वेट। तो डेसिकेशन का प्रोसेस का जब हम किसी चीज़ में करेंगे डेसिकेशन का प्रोसेस, तो उसमें क्या होगा कि उसमें से मॉइस्चर जो है वो या नमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो क्या होगा, उसका वेट या उसका वज़न जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो पहले गीला था, अब उसमें से नमी हट जाएगी तो वो खुश्क हो जाएगा और उसका वज़न कम हो जाएगा। तो इसको इसलिए फिर डेसिकेशन का जो प्रोसेस है वो हमें हेल्प करेगा किसी चीज़ के वेट को कम करने में। इट रिड्यूस द बल्क वेट ऑफ ड्रग। इट रिड्यूस का मतलब कि डेसिकेशन का प्रोसेस रिड्यूस करता है या कम करता है बल्क वेट ऑफ ड्रग, ड्रग का जो ज़्यादा वजन है उसको कम करता है। बाय रिमूविंग मॉइस्चर,
क्योंकि ये नमी को रिमूव करता है या हटा देता है या ख़त्म करता है, तो इसलिए प्रोडक्ट या ड्रग का जो वेट होगा वो कम हो जाएगा। इन द वे रिड्यूस द कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरह फिर एक तो ये है कि ड्रग जो है लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होगी, और दूसरा फ़ायदा हमें ये होगा कि उसका वज़न जब कम होगा तो हमें ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प मिलेगी, हम एक जगह से दूसरी जगह भी उसको आसानी से मूव कर सकते हैं। अब है इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग इज इंक्रीज बाय डेसिकेशन। तो डेसिकेशन के अमल से ड्रग की स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। किस तरह कि जब उसमें, अगर पहले आप देखें, अगर किसी ड्रग में मॉइस्चर या नमी है तो उसमें क्या होगा, एक तो उसमें माइक्रोब्स या खुदबीनी जानदार ग्रो करेंगे और उसको ख़राब करेंगे। अब दूसरा ये है कि उसको वो कीमियाई उसमें रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि उसमें नमी अभी होगी। तो जब हम किसी ड्रग में से या किसी सब्सटेंस में से डेसिकेशन के प्रोसेस से नमी या फ्लूइड या एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होगा उसको रिमूव करेंगे तो वो प्रोडक्ट ड्राई हो जाएगी और उसमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। जब उसमें मॉइस्चर ख़त्म होगा तो उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी, वो रिएक्शन नहीं कर सकेगी, और इस तरह हम उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकेंगे। आगे जो पॉइंट है वो है टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। अब यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब जो होगा उसका मतलब होगा कि ड्रग को छोटे टुकड़ों में या पीसीज में तकसीम करना, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन का मतलब होगा कि किसी ड्रग का छोटे टुकड़ों में आसानी के साथ तकसीम करना या तब्दील करना। तो इस तरह इसमें क्या होगा कि डेसिकेशन प्रोसेस मेक ड्रग लेस इलास्टिक एंड मोर ब्रिटल। तो डेसिकेशन का अमल जब हम दवाई में करेंगे तो उससे वो क्या होगी, लेस इलास्टिक, उसकी जो लचक है वो कम हो जाएगी और वो मोर ब्रिटल और ज़्यादा टूटने वाली हो जाएगी। कैसे? कि जब उसमें आप क्या करेंगे, डेसिकेशन का प्रोसेस करेंगे तो उसमें से लिक्विड और फ्लूइड या मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो जिस चीज़ में से नमी कम हो जाएगी उसकी लचक भी कम हो जाएगी और वो सख्त और टूटने वाली हो जाएगी। आप देखें कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है उसमें नमी या मॉइस्चर कम हो जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा तो वो इतनी सख्त हो जाती है कि टूट तो सकती है लेकिन वो अपनी जगह पे उसकी लचक ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डेसिकेशन का जो प्रोसेस है वो मेक द ड्रग, वो ड्रग को बनाता है लेस इलास्टिक, कम लचकदार, और मोर ब्रिटल और ज़्यादा टूटने वाली। तो ब्रिटल ड्रग्स आर ट्रिचुरेटेड या क्रश्ड मोर इजीली एज कम्पेयर टू इलास्टिक ड्रग। तो इसलिए जो ब्रिटल ड्रग्स होती हैं जिनमें नमी कम होती है और वो जल्दी टूट सकती हैं तो वो क्रश की जा सकती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम की जा सकती हैं मोर इजीली, बहुत ज़्यादा आसानी के साथ, एज़ कम्पेयर टू इलास्टिक ड्रग्स, उन दवाइयों के मुकाबले में जो कि अभी इलास्टिक हैं, जिनमें अभी मॉइस्चर है, और जब हम उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे वो टूटती नहीं है, वो मुड़ जाती है। तो इस तरह वो टूटने में मुश्किल पैदा करेंगी। जबकि जो ड्राई ड्रग्स होंगी जिनमें हम डेसिकेशन का प्रोसेस कर लेंगे उनमें फ्लूइड कम हो जाएगा तो वो ब्रिटल होंगी और खुश्क होंगी बहुत ज़्यादा और आसानी से टूट जाएंगी। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उसका है पॉइंट है इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ क्रूड ड्रग। शेल्फ लाइफ ऑफ द क्रूड ड्रग इज इंक्रीज्ड बाय डेसिकेशन। तो शेल्फ लाइफ ऑफ क्रूड ड्रग का मतलब है, शेल्फ लाइफ का मतलब है किसी दवाई का ज़्यादा देर तक काबिल इस्तेमाल रहना या स्टेबल रहना। तो जब दवाई को हम डेसिकेशन के अमल से गुजारेंगे तो पहले क्या है कि ड्रग में मॉइस्चर या नमी होगी। जब हम डेसिकेशन प्रोसेस से गुजारेंगे तो उसमें मॉइस्चर या नमी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। अब आपको पता है कि जो डेसिकेशन के अमल से पहले जो दवाई होगी जिसमें नमी है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी और कोई ना कोई उसमें रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जैसे डेसिकेशन के प्रोसेस से वो दवा गुजरेगी और ड्राई हो जाएगी
तो उसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। जब उसमें स्टेबिलिटी आएगी, वो क़याम पज़ीर हो जाएगी उसकी हालत, तो वो ज़्यादा देर तक शेल्फ लाइफ पे दवा काबिल इस्तेमाल रहेगी। तो इस तरह उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। तो अब है एप्लीकेशन कि कहाँ कहाँ इसको अप्लाई किया जा सकता है। पहला पॉइंट है, बाय यूजिंग डेसिकेशन द स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन्हांसेस। तो हम डेसिकेशन के इस्तेमाल को या डेसिकेशन के प्रोसेस के इस्तेमाल को बढ़ाकर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या दवाइयों की स्टेबिलिटी या क़याम पज़ीरी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो खुश्क हो जाती हैं तो इसलिए स्टेबल हो जाएंगी, और जब वो मॉइस्चर में होंगी या नमी की हालत में होंगी तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगी। अब दूसरा पॉइंट है, डेसिकेशन इज़ रिनोन्ड प्रोसेस फॉर ड्राइंग। डेसिकेशन जो है रिनोन्ड प्रोसेस है, मतलब जाना पहचाना या मशहूर तरीका है फॉर ड्राइंग, किसी चीज़ को या ड्रग को ड्राई करने के लिए। थर्ड पॉइंट है, ऑल हाइग्रोस्कोपिक ड्रग आर ड्राइड थ्रू डेसिकेशन प्रोसेस। ऑल मतलब तमाम, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें पानी की चाहत या जिसमें पानी को अपने अंदर जज़ब करने की या अपनी सरफेस पे स्टोर करने की एहलियत होती है, तो उनको हाइग्रोस्कोपिक ड्रग कहते हैं, जिनको इंग्लिश में कहेंगे द ड्रग्स दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब द मॉइस्चर और लिक्विड या पानी। तो ऐसी दवाइयाँ जो अपनी सतह पर या जो अपने अंदर पानी को जज़्ब करने की एहलियत रखती हैं, उनको हम हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स कहते हैं। तो इस यहाँ है थर्ड पॉइंट में कि ऑल द हाइग्रोस्कोपिक ड्रग आर ड्राइड थ्रू डेसिकेशन प्रोसेस। तमाम वो दवाइयाँ जिनमें ये एहलियत है कि वो मॉइस्चर या पानी को अपनी सतह पर जमा कर लें या अपने अंदर जज़ब कर लें, हम उनको डेसिकेशन के प्रोसेस से ड्राई कर सकते हैं। और जो इसका लास्ट और फोर्थ पॉइंट है वो है कि फॉर डेसिकेशन ड्राइड सिलिका जेल एंड एलुमिना इज यूज्ड इन द बॉटल ऑफ हाइग्रोस्कोपिक मेडिसिन। तो फॉर डेसिकेशन के अमल के लिए खुश्क सिलिका जेल और एलुमिना, एलुमिना को हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहेंगे और एलुमिना भी कहते हैं। तो हम डेसिकेशन प्रोसेस के लिए जो खुश्क सिलिका जेल होगी या एलुमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है, इनको इस्तेमाल करते हैं किसमें, उन दवाइयों के बोतल में जो दवाइयाँ पानी को अपनी तरफ खींच सकती हैं या अपनी सतह पर या अपने अंदर जज़ब कर सकती हैं। उन दवाइयों की बोतल में हम सिलिका जेल या एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एलुमिना ऐड कर देते हैं, ताकि जो मॉइस्चर होगा हम उनको दवाइयों में जाने की बजाय सिलिका जेल या एलुमिना की तरफ उसको मोड़ दें, और दवाई जो हमारी है वो क्या होगी, हमें ड्राई पोजीशन या ड्राई कंडीशन में मिलती रहे। तो ये है पूरा प्रोसेस। आपने ये देखा भी होगा कि कोई जो मल्टी विटामिन या कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसमें एक बोतल में 30 गोलियाँ होती हैं, तो 30 गोलियों का मतलब है अगर हम रोज़ एक गोली खाएंगे तो वो एक महीने की खुराक होती है। तो उसमें छोटी छोटी थैलियों में एक थैली आपको नज़र आएगी उस बोतल में, जिसमें बिल्कुल बारीक दाने होंगे खाद की तरह के, जो उस बोतल में होते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि हम रोज़ एक टेबलेट उसमें से निकाल के जब खाते हैं तो दवाई में मॉइस्चर पकड़ने की या नमी को अपने अंदर जज़ब करने की चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब वो थैली में सिलिका जेल के दाने हम उसमें रख देंगे तो जितनी नमी या जितने वो मॉइस्चर हवा के साथ उस बोतल में जाता है, तो सिलिका जेल उसको ज़्यादा तेज़ी के साथ, दवाई के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी के साथ अपनी तरफ उस मॉइस्चर को खींच लेती है, और वो जो मॉइस्चर या नमी होती है उसको अपने अंदर जज़ब करती है, ना कि वो जाके दवाई के साथ रिएक्शन करे या दवाई में जज़ब हो। तो इस तरह पूरे 30 दिन या पूरा महीना, जब तक कि हम उस बॉटल में से आखिरी डोज तक ले नहीं लेते, हमें पूरी ड्रग्स जो है वो खुश्क हालत में मिलती हैं, और उनका जो है रिएक्शन नहीं होता और वो काबिल इस्तेमाल बनाई जा सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।